In this topic, we will study about the heating effect of current, then Joule heating, Joule's law, the power consumption in series and parallel connection, as well as unit of the power and Joule heating energy. So first of all, here you can see the phenomenon of the production of heat in resistor by flow of an electric current through it is called heating effect of or of current or the Joule heating. Means simply suppose we are connecting a resistor with any voltage supply. कोई भी वोल्टेज सप्लाई से अगर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से करंट पास होगा. ये रेजिस्टर R है. कुछ टाइम बाद ये रेजिस्टर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दैट हीट एनर्जी, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट और इट इज कॉल्ड एज अ जूल्स इफेक्ट. बट व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? ऐसा होता है क्या इसके अंदर कि जिससे इतनी सारी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है. आपने जनरली देखा हो कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़्यादा देर तक वर्क करता है तो हीट हो जाता है. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जर, सो द अडेप्टर ऑल्सो गेट हीटेड, इवन द मोबाइल गेट हीटेड, टीवी, whatever, कोई भी, any appliances. So now we are going to study about what is the reason behind that. Cause of Joule heating. Here the resistor is drawn. This is the metal. ये metal का वायर है. अगर मैं इसके अंदर के phenomenon को समझाऊं, so here we are just considering one metal wire. This metal wire having number of positive ions. Positive ions कहाँ पर होते हैं? अपने lattice point पे होते हैं. They are fixed. They can move only about the lattice point. Means it is called as vibration. Linear motion नहीं करेगा वो. यहाँ पे जो हमने सप्लाई से वोल्टेज दिया, दैट वोल्टेज मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. इसके ऊपर जो फिगर हमने ड्रॉ करके रखा है इसमें बेटा करंट का डायरेक्शन हो गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का. सो ऑब्वियस फ्रॉम हियर वी कैन कंसिडर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा. पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है? कन्वेंशनल करंट होता है. सो व्हाट विल हैपन when the electron enters into this conductor? So what will happen? It will start to accelerate. ये accelerate करेगा, पर इसका acceleration short time के लिए होगा. After collision, it will change its path. It will again accelerate. What is happening? Due to which we can see it is performing random motion. Means ये तो confirm है that the electron gets accelerated. Okay, that is correct one. But this acceleration, it is not for long time. In short time interval, it will collide with another positive ion and it will just stop in that particular direction. मतलब उसकी velocity एक particular direction में zero हो जाएगा. The speed of electron not increases beyond the drift speed. ये अपनी स्पीड को कहाँ तक मेंटेन करेगा? ड्रिफ्ट स्पीड तक लेके जाएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग? कंटिन्यूस collision is taking place. So here electron collides frequently with the positive metal ions. Means here we can see when the electron just collide with one of the positive ion, so in that particular direction now it is not moving, it is zero. Now the direction is changed. अभी इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे भी जीरो कर देगा. व्हाट इज हैपनिंग? एक्सेलरेट तो होता है पर बहुत एक्सट्रीम वेलोसिटी तक नहीं पहुँचता. एक एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक ही अपने आप को अचीव कर पाएगा, अपनी स्पीड को. नाउ हियर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू द मेटल आयंस एट द टाइम ऑफ कॉलिजन. इसको समझते हैं. हियर वी आर कंसिडरिंग दैट टू पॉजिटिव ions
एक ये है, एक ये। टू सक्सेसिव कोलिजन की बात करनी है ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां से पर्टिकुलर इस डायरेक्शन से आया, कलाइड हुआ, कोलिजन के बाद उस डायरेक्शन में अब उसकी स्पीड 0 हो गई। नाउ इट इज मूविंग इन अनदर डायरेक्शन। In this duration, what is happening? Its velocity is increasing because of it is performing accelerated motion. इसकी velocity increase हो रही, इसका मतलब क्या हो गया? इसका kinetic energy भी increase हो रहा है. Its kinetic energy is increasing. So the entire kinetic energy increased of that electron, it is just transferred to this positive ion when it collide with this. जैसे कोलाइड हुआ वैसे अपनी सारी एनर्जी क्या किया उसने, इस पॉजिटिव आयन को दे दिया। ये पॉजिटिव आयन को एनर्जी मिली, मींस अभी पॉजिटिव आयन क्या करेगा, दिस पॉजिटिव आयन विल स्टार्ट टू ऑसिलेट। इसको जो भी एनर्जी मिल रही है वो इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में ट्रांसफर होगा। व्हाट विल हैपन, इट विल ऑसिलेट। और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्ट्राइक करेंगे, इसका स्पान बढ़ता जाएगा, एम्पलीट्यूड और इंक्रीज होगा। व्हाट इज हैपनिंग, that kinetic energy of electron, it is transferring into the vibrational energy of positive ion, metal ion. We know that the vibrational energy, it is due to the temperature or vice versa. मतलब अगर इसका oscillation increase हो रहा है, इसका vibration increase हो रहा है, means what is happening actually, the metal ions start to vibrate and become more energetic. मतलब और vibration बढ़ता जाएगा, more and more vibration. This energy is in the form of heat energy, means the kinetic energy of electron, it is transferred into the heat energy, due to which temperature of resistor increases. अब temperature इस resistor का मतलब इस पूरे वायर का increase होगा because of electron के बार बार collision से। तो ये energy आई कहाँ से, from where? So energy of supply, हम जिस supply से इसको connect करके रखा उसकी energy है, and now it is transferred into the heat energy. Is it clear? What is the reason behind that? वो clear हो गया। अब अगर मैं Joule's law को यहाँ पे derive करूँ, so come to this topic, Joule's law. So again that simple concept. So let us consider here one resistor, it is connected with voltage supply, this is V. We are considering two terminals, एक यहाँ पे consider किया मैंने, एक यहाँ पे consider किया, correct ना? This is point A, this is point B. Resistance of this resistor is R. Current passing through it, it is I. Here it is, correct? Now ये सप्लाई वोल्टेज है। अब कंडीशन है यहाँ पर कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज नेगेटिव, सो इट इज वेरी क्लियर हियर दैट पोटेंशियल ऑफ A, it is greater than potential of B. That means I can write it as that potential difference is nothing but it is VA minus VB and this is greater than 0. दिस इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। अब मैं कंसिडर करता हूँ कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से पास हुआ। सो लेट द चार्ज Q, द चार्ज Q, इट इज पासिंग थ्रू द रजिस्टर फ्रॉम A to B। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने कंसिडर किया, ध्यान रखना, करेक्ट। सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज, द चार्ज वैल्यू इट इज Q is equals to IT. Let us consider time interval is delta t. So in delta t time interval, the charge amount Q is passed through this resistor from A to B. Now we can see here the potential. What is the potential over here? Potential at point A, अगर पोटेंशियल एट पॉइंट ए तो इट इज वी ए। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सो द पोटेंशियल
energy of charge at point A. So I can write it as QVA, correct? And the potential energy of charge Q at point B. So this will be QVB. So now we can find out the potential difference. So potential energy का difference कितना होगा? So change in potential energy of the charge Q when it is transferring from A to B, from A to B. So that is change in potential. I am writing it as delta U. So this delta U is equals to, so it is final minus initial. This final is QVB and this initial is QVA. I can take this Q common. This is VA minus VB. But we have studied about it recently that VA minus VB is greater than 0. You can see here. But here it is VB minus VA. Sorry, this is VA. So obviously this is lesser than 0. Means it negative हो जाएगा. So this value is V, but this is negative, isn't it? Correct. Now this Q is equals to, recently अभी देखा हमने, it is I delta T. Mean this amount is lesser than 0. तो ये क्या शो कर रहा है? This is loss of energy. Means जब ये चार्ज इस पॉइंट A से पॉइंट B पर आया थ्रू दिस रजिस्टर, तो उसने अपनी कुछ एनर्जी का लॉस किया और वो हमारे पास प्रूफ यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू से है. ये एनर्जी एक्चुअल में क्या है? तो अभी हमने डिस्कस किया थ्योरी पार्ट में, मालूम है ना. एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी. ये क्या था? काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy of electron transferred to the positive ions in the form of heat energy. करेक्ट ना? तो हीट एनर्जी में हो गया. हम ये भी देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में एक्चुअल में इंक्रीमेंट वो पॉजिटिव वैल्यू है. कैसे? सी, as we know that the kinetic energy means change in kinetic energy, it is nothing but the minus change in potential energy, negative of that. Means यहाँ पे क्या आएगा? It is IV delta T. It is greater than 0. That means kinetic energy increases, potential energy decreases, पर total amount of energy is constant. बस यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है. किस फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में. तो अगर मैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो लॉस हुआ उसको फाइंड करूं इन मैग्नीट्यूड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन रेजिस्टर, मतलब जिसको मैं लिख रहा हूं लॉस ऑफ एनर्जी. सो दैट इज, आई कैन राइट इट एज डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी. इट इज आई वी डेल्टा टी. करेक्ट. सो दिस इज आई वी डेल्टा टी. नाउ व्हाट अबाउट द पावर? अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लेके जाऊं, लॉस ऑफ पावर इन द सर्किट. पावर P इज नथिंग बट वर्क पर टाइम और एनर्जी पर टाइम. सो दिस विल बी, इट इज आई वी डेल्टा टी बाई डेल्टा टी. सो दिस इज आई वी. नाउ अब ओम्स लॉ अगर लगा दो यहाँ पर, अब सिंपल है. सो दिस पावर P इज इक्वल्स टू आई वी है. We know that the V is equals to IR. We can write any one of them, that I को subject ले लूँ या V को. Suppose I am taking subject as V, so this is IR. So this will be I square R. And suppose I am taking this I as subject, so it is V, means it is V square by R. So this is the power loss in the circuit. Correct. So ये power loss हो गया. एंड द वी आई, इट इज़ द सप्लाई पावर. इसको हम लॉस लिखते हैं बेटा, और ये कौन सा सप्लाई वैल्यू है. सो दिस इज लॉस ड्यू टू द रेजिस्टर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओहमिक लॉस.
and this is the power of supply. So here I think it is clear कि हमने जूल हीटिंग का कंडीशन निकाला, रूल रीज़न उसका क्या है, जूल्स लॉ. अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस करंट है उसके प्रपोर्शन में आ जाएगा तो मिल जाएगा जूल्स लॉ. व्हाट इज दैट? दैट मीन्स दिस पावर P इज प्रपोर्शन टू I स्क्वायर. करेक्ट. तो उसका स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं किसका, जूल हीटिंग के लिए. सो व्हाट इज दैट, जूल्स लॉ में जब हमने प्रूव किया ये, that the amount of power or amount of energy dissipated in unit time on the constant current passing through it, it is directly proportional to square of that current. It means it is I square. Is it clear? Now ये energy जो मिली हमको, this is W work के लिए, I can write it as JH also. What is this H? This is the heat energy. हम कैलोरी में इसको लिखते हैं तो इसको परफेक्टली लर्न कर लेना अच्छे से बेटा. दैट आई कैन राइट इट एज इन जूल एंड कैलोरी. जूल में क्या, J इज अ कांस्टेंट वैल्यू. व्हाट इज J? इट इज 4.2 जूल पर कैलोरी. नाउ द आइडिया टू रिड्यूस लॉस ऑफ पावर इन केबल्स. अब अगर ऐसे पावर का लॉस होता रहेगा ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो सप्लाई जो स्टेशन है, पावर स्टेशन है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी घर तक लेके आना है, होम टाउन तक लाना है, तो बहुत सारा पावर तो कंज्यूम हो जाएगा सर्किट के अंदर. सो व्हाट टू डू फॉर दैट? सो हियर वी आर कंसिडरिंग दिस इज अवर होम टाउन और वी कैन से द डिवाइस. इस डिवाइस को जिस पर्टिकुलर पावर पे वर्क करना है, सो हियर पावर ऑफ डिवाइस इज P. हमने कंसिडर किया कि ये P पावर पे वर्क करेगा. ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, इस रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस दिया है, इट इज़ R. जिस डिवाइस की बात, एनीथिंग, सपोज मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वट एवर जो भी है. नाउ द कंडीशन वोल्टेज सप्लाई पावर स्टेशन. अब पावर स्टेशन से जो वोल्टेज सप्लाई है दैट इज़ द वेरी लार्ज वैल्यू. हम सपोज ये पावर स्टेशन कंसिडर कर ले रहे हैं. अब पावर स्टेशन से होम टाउन तक जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ला रहे हो तो आपको केबल की ज़रूरत पड़ेगी. करेक्ट ना? सो हियर वी आर कंसिडरिंग दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, जिस केबल से हम इसको लेके आ रहे, इट इज़ RC. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या होगा? सो लेट्स स्टार्ट. ये डिवाइस है, डिवाइस के लिए पावर मालूम पड़ गया. व्हाट इज द पावर ऑफ द डिवाइस? इट इज़ P. रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस इज R. वोल्टेज सप्लाई कितना है? V है. कहाँ पे? थर्मल पावर स्टेशन है, जो भी पावर स्टेशन है वहाँ का. नाउ रेजिस्टेंस ऑफ केबल इज RC. तो इस केबल में कितना पावर कंज्यूम हो वहां से स्टार्ट करते हैं. कंज्यूम पावर इन द केबल. सो इन दैट केबल इट इज PC. C stands for cable. We know the formula, it is I square R. अब यह कंडीशन हो गया कि ये डिवाइस जो है इट इज requiring power P, its resistance is R. So I can write this is P is equals to VI, isn't it? So this current I, ये current पूरे केबल में है, so I can replace this I by this formula that I is equals to P by V. So I can write it as it is P square by V square RC. Now you can see that this PC is directly proportional to 1 upon V square. सिर्फ मैं इस वोल्टेज को चेंज कर सकता हूँ और कुछ चेंज नहीं कर सकता क्योंकि केबल का रेजिस्टेंस फिक्स्ड है. करेक्ट ना? पावर ऑफ डिवाइस भी फिक्स है. ईरा वोल्टेज मीन्स PC is inversely proportional to square of the voltage. Means by any method, any idea, if we are reducing this V, then PC increases. So if you increasing this V, so PC decreases. Means supply जहाँ पर है पावर स्टेशन, वहाँ पे मैक्सिमम पावर होना चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज होना चाहिए, और यहाँ पे लाके इसको मिनिमम भी करना पड़ेगा, अदरवाइज उतने हाई वोल्टेज पे बर्न हो जाएगा. मीन्स वी वांट द डिफरेंट डिवाइस सिस्टम, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर. एट पावर स्टेशन वी नीड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? टू इंक्रीज द वोल्टेज. And at the device or we can say the home, we need step down transformer कि voltage को वापस reduce कर देना पड़ेगा. So
By this idea, we can reduce the loss of the power in cables. Now, electrical energy and power के unit or basic formula. Here, electrical energy, I can write it as like W, with W this. W भी लिख सकता हूँ, I can write GH also. So it is VIT. So this one, even I can write it as V square RT. Even I can write it as I square RT. And when we are talking about the power, simply it is by T, so it will be VI. Here the power is equals to, it is V square by R, and the power is equals to I square R. Unit of energy, it is joule, correct? सिंपल टर्म है. जूल के साथ हम जो यूनिट यूज़ करते हैं, इट इज़ इन द जनरल यूजेस, कमर्शियल यूज़ में होता है. सो 1 किलोवाट आर भी आपने पढ़ा है, इट इज़ 1 किलोवाट आर, इट इज़ 3.6 10⁻⁶ joule of energy. This amount of energy, it is used in the commercial. So here it is 3.6 10⁶ joule of energy. Now what about the power? So it is watt, joule per second, horsepower we can use. 1 horsepower, 1 HP is equals to 746 watt. Basic relation है. Now here we are talking about the power rating. कोई भी बल्ब, कोई भी डिवाइस लेते हैं उसके ऊपर एक पावर रेटिंग लिखा होता है. So here I have mentioned that electrical energy consumed per unit second by device when connected with the voltage supply marked on it. What is the meaning of this marked on it? कोई भी बल्ब अगर आप लेते हो तो उसके ऊपर मार्किंग होती है, किसका? पावर का और वोल्टेज का. मीन्स if this bulb is connected with this particular marked voltage, so this amount of power will be consumed in this bulb or in this filament. मतलब वो एनर्जी कितना लॉस करेगा उसको शो करता है. तो आप कभी भी कोई बल्ब देखना उसके ऊपर मार्किंग होगी, यू कैन सी दैट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर कंजम्पशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर. सबसे पहले कंडीशन आती है सीरीज कनेक्शन की. हियर वन आइडिया इज मेंशन, एक ट्रिक है, इसको लर्न कर लेना है, डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, की पॉइंट है, पर हम प्रूव करेंगे इसको. दैट द बल्ब विद लोवेस्ट पावर रेटिंग ग्लोज विद मैक्सिमम ब्राइटनेस. क्लियर नहीं है ये? So you can see here, the bulb with lowest power rating glows with maximum brightness and will be fused first when current exceed the safety limit. मतलब जिस बल्ब का पावर रेटिंग कम होगा, मतलब उसकी तो ताकत ही कम हुई, वो क्या करता है, ज़्यादा ग्लो करेगा, वो अपनी हाईएस्ट ब्राइटनेस में ग्लो करेगा, करेक्ट ना? लेकिन कब तक ग्लो करेगा? जब तक एक्सीड ना हो जाए करंट लिमिट. जैसे एक्सीड होगा वैसे ही वो फ्यूज हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू प्रूव इट. हम उसको प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में कैसे हो सकता है, हाउ. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन द सीरीज कनेक्शन. लेट अस कंसिडर 3 बल्ब्स और 3 रेजिस्टर, वट जो भी आप इसको रिप्रेजेंट करो जैसे भी. Here it is connected with supply. आप इस सप्लाई को मेन सप्लाई शो करो तो आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो दिस इज द V वोल्ट सप्लाई एंड द करंट पासिंग थ्रू इट एज I. हमने जो भी रेजिस्टर यहाँ पे चूज किए, सो लेट अस कंसिडर दे आर हैविंग द सेम वोल्टेज, रेटिंग उनका सेम है बट द पावर डिफरेंट. सो P1 with V, P2 with V and P3 with V. और सप्लाई भी हमने कह दिया, इसको V दिया. वी नो द फार्मूला
मेन फॉर्मूला पावर के लिए, दैट पावर P is equals to V square by R, implies that I can write R is equals to V square by P. That means here it is clear that R is proportion to P. Means जिस बल्ब का पावर रेटिंग हाई होगा उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगा, and if the power rating is lower then the resistance is high. So based on it we can write the power of each of them. Means power of first it will be V square by, sorry, resistance of first it is P square by P1, V square by P1, and here it is R2 is equals to V square by P2, and here R3 is equals to V square by P3. We can see all of them are in series, सब series में connection है. So here R effective is equals to R1 plus R2 plus R3. This can be written as V square by P1, V square by P2, and V square by P3. I can take this V square common from here. Effective है पर supply तो V है, so I can write V square by P effective. So you can see here directly we can cancel that V square on both the sides. So you will get 1 P effective is equals to 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus 1 upon P3. Implies it is similar as the parallel connection of the resistors. Power हमने निकाला effective. If they are identical, so I can write it is P by n number of bulbs. ये तो क्लियर हो गया. Now what about the current? The effective current passing through it is V is equals to IR, means I is equals to V by R. All of them are in series, so this is the current value. Based on this current value we can find out that power of the bulb, glowing power, ये power कौन सा है? उनका rating power है. This power is rating power. I want to get the glowing power, कितने पावर से वो ग्लो कर रहे हैं, कितना ग्लो हो रहा है. So that can be written as it is P1 dash, it is I square R1, P2 dash is equals to I square R2, and P3 dash it is I square R3. So you can see here, let us consider, हम ऐसा consider करते हैं that the power of first bulb is greater than the power of 2 power of 3 here. ये कौन सा मालूम है ना? रेटिंग पावर. यू कैन सी हियर रेटिंग पावर का रिलेशन ही रहा, मीन्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लेसर, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड लेसर, हियर इट इज R3. करेक्ट हो गया. नाउ यू कैन सी हियर दिस ग्लोइंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मीन्स हियर आई कैन राइट P1 डैश लेसर देन P2 डैश लेसर देन P3 डैश. तो कंक्लूजन क्या मिल गया कि जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होगा वो कम ग्लो करेगा, जिसका पावर रेटिंग कम होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा. तो ज़्यादा करंट पास होगा तो फ्यूज़ भी कौन सा होगा? यही होगा पहले, राइट ना. सो दैट्स वाई दिस इज द कंक्लूजन फॉर द सीरीज कनेक्शन. द बल्ब विद लोवेस्ट पावर रेटिंग ग्लोज विद मैक्सिमम ब्राइटनेस and will be fused first when current exceed the safety limit. Now अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की. पैरेलल कनेक्शन के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या? द बल्ब विद हाईएस्ट पावर रेटिंग ग्लो विद द मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड विल बी फ्यूज्ड फर्स्ट व्हेन द करंट एक्सीड द सेफ्टी लिमिट. व्हाई इट इज डिफरेंट प्रूफ करते वैसे पैरेलल कनेक्शन, इसलिए जस्ट उसका अपोजिट आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द पैरेलल कनेक्शन. सो लेट अस कंसिडर 3 कंपोनेंट रजिस्टर या फिर बल्ब, जो भी कंसिडर कर लो. connected with supply, ओके. अब यहाँ पे कंडीशन क्या, हमने V सप्लाई दिया एंड ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल, सारे के सारे पैरेलल में है. लेट अस कंसिडर इट्स पावर P1, P2 एंड P3. यहाँ पे वोल्टेज तो वैसे सेम मिल रहा है सबको. इज इट क्लियर? कंडीशन अपना वही, दैट P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, implies that R is equals to V square by P. They all are in parallel.
So the parallel का condition, it is 1 upon R effective is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. We know that the R correlation here, it is V square by P. So when you will solve, you will get the series connection like this. If n number of bulbs with the same power, it will be NP. This is the parallel connection. In the case of parallel connection, brightness of bulb, तो जितना पावर मिल रहा है उसी पे, बिकॉज ऑफ वोल्टेज सप्लाई सबको सेम मिल रहा है, मीन्स आई कैन राइट द P1 dash is equals to V square upon R only. So here the P2 dash is equals to V square by R2 only, and here it is P3 dash, it is V square by R3. अब कंडीशन आती है यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट. वी नो दिस R is proportion to P. R proportion to P हो गया, means if P is maximum then R become minimum. अब यहाँ पे रिलेशन देखो ब्राइटनेस का, द ब्राइटनेस इज proportion to 1 upon R. मीन जिसका R कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, द ग्लोइंग पावर इज मैक्सिमम. कंक्लूजन मिल रहा है, सी हियर दैट let P1 it is lesser than P2 lesser than P3, so resistance R1 greater than R2 greater than R3, पर पावर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ. सो दिस P1 dash it is P2 dash it is P3 dash. So you can see the bulb with the highest power glows more, ज़्यादा ग्लो करेगा. और कंडीशन वही, जैसे एक्सीड होगा लिमिट वैसे क्या करेगा, ये बर्न हो जाएगा, इट विल बी बर्नड आउट. So today we have studied about the relations of I, R, V means power, energy, their units, and series and parallel connections.